Let us start session 5 of chapter 8, motion. We have already studied about velocity, acceleration, its formulas, okay, distance, displacement, and we all know difference about them. We also know the units used for velocity, speed, acceleration, distance, and time. Now today we are going to study about a graphical method. One graphical method, that is a distance time graph, we have studied. Today we will study about velocity time graph. So let us start session 5 of chapter 8. The variation in velocity with time for an object moving in a straight line can be represented by velocity time graph. We have already discussed about the importance of graph. We can use the graph for various purpose. We can represent many things on the graph. Here in a previous session, we have seen that we can draw the graph of a moving object. We have drawn the graph of distance versus time. Now today we are going to learn about velocity time graph of a moving object in a straight line. Now in this graph, time is represented along x-axis and the velocity is represented along y-axis. You can see the time, this is the x-axis which is shown as a time, and this is a y-axis which is represented as a velocity. Okay, so these things we have marked. Now we can draw the graph with the help of some values. So from where these values are available, that we will see in the next slides. If the object moves at a uniform velocity, the height of its velocity time graph will not change with time. मतलब what is the meaning of this sentence? Uniform velocity मतलब same velocity होगा. तो सेम वेलोसिटी होगा तो ये जो ग्राफ है इसके अंदर टाइम वेलोसिटी का जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो चेंज नहीं होगा. हाइट विल नॉट चेंज. मतलब यहाँ से मान लो स्टार्ट हुआ है तो वो ऐसे ही जाएगा स्ट्रेट हॉरिजॉन्टली. ओके, ये किसके लिए होगा? यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल. तो ये चीज एक आपको पता चल गई जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये एमसीक्यू ब्लैंक्स ट्रू और फॉल्स ऐसे जगह पे पूछी जाती है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो हम लिख सकते हैं हॉरिजॉन्टल. ओके, नाउ इट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. जो यहाँ पे डायग्राम में दिया है कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये एक्स एक्सिस है ऑलरेडी हमने देख लिया है और वहां पे हमने टाइम कंसीडर किया था तो उसके पैरेलल होगा. ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ. Figure shows the velocity time graph for a car moving with uniform velocity of 40 km per hour. So this graph, they are talking about this graph. In this graph you can see यहाँ पे 40 से start हो रहा है. उसका मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट है या तो कार या कोई बाइक वो 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चल रहा है. उसका वेलोसिटी ना तो कम हो रहा है ना तो बढ़ रहा है. ओके, so it is having a uniform velocity matlab it is having a same velocity, its velocity is not changing. We know that the product of velocity and time give displacement of an object moving with a uniform velocity.
So from the formula of velocity, we know velocity is equal to displacement upon time. ऐसा हमें पता है. तो वैसे लिख सकता हूँ displacement is equal to velocity multiplied by time. राइट. तो यहाँ पे देखो कि वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो ये हमें चीज मिला, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. क्यों? क्योंकि वेलोसिटी एंड टाइम ये दोनों एक्सिस का हमने एक ग्राफ बनाया है एंड वो है ये. एंड उसका एरिया एक पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, कोई भी एरिया मान लो कि हमें दो पॉइंट के बीच का एरिया फाइंड करना है, तो ये है रहा ब्लू कलर से. द एरिया एनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस will be equal to the magnitude of the displacement. तो यहां से मान लो कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बी हमारा एंड पॉइंट है. तो स्टार्ट से एंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि टाइम ग्राफ जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में है मतलब ये, एंड द एक्सिस दैट इज इक्वल टू दिस टाइम एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस, ये दोनों के बीच का जो एरिया होगा वो हमें दिखाएगा डिस्प्लेसमेंट. ओके. तो ये यहाँ पे जो दिखा है आपको मतलब ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. जर्नी स्टार्ट हुई थी यहाँ से. ओके. जीरो आवर से यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था. जर्नी स्टार्ट हो गया, मैं बीच में कहीं पे दो पॉइंट के बीच में मतलब यहाँ पे ए एंड बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है मुझे. मैं क्या करूंगा, ए से हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन है वो मैं टाइम एक्सिस को कट करूंगा, बी से मैं ड्रॉ करके टाइम एक्सिस को कट करूंगा. ओके. तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने ए का लाइन कट किया है वो हो गया T1 टाइम 1, एंड ये बी से जो वर्टिकल लाइन था वो कट कर रहा है टाइम को, वो हो गया T2, मतलब उसको बोल सकते हैं टाइम T2. नाउ टू नो द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार, अभी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा हिंट दे दिया है. कार बिटवीन टाइम T1 एंड T2, ये T1 और T2 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो फाइंड करना है. तो क्या करेंगे, यूजिंग फिगर ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट्स करस्पॉन्डिंग टू टाइम T1 एंड T2 ऑन द ग्राफ्स. मतलब यहाँ पे टाइम T1 है कोई भी, ये एक्सिस था, ये जो एक्स एक्सिस था यहाँ पे मैंने दे दिया ये टाइम T1 और ये है टाइम T2. फिर एक ग्राफ ऑलरेडी हमारा यहाँ पे दिया हुआ है. देखो अब मैं डायरेक्टली यहाँ से दिखा रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, इसके अंदर पहले मैं मार्क करूंगा ये टाइम T1 और फिर मार्क करूंगा टाइम T2, और ये हमारा जो ग्राफ है वो मोशन का ग्राफ है, हमारा बॉडी का, ये ऑब्जेक्ट का मूविंग ग्राफ है जो हम कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं. ओके. तो मैं ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दोनों टाइम के बीच में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाएगा परपेंडिकुलरली ऊपर, ये पॉइंट से जाएगा परपेंडिकुलरली ऊपर. ओके. तो ये जो ग्राफ यहाँ पे कट कर रहा है वो नाम दे दिया ए, और यहाँ पे जो कट कर रहा है वो नाम दे दिया बी. गॉट इट. तो मेरे पास ऐसा एक शेडो शेडो वाला मतलब एक कलरफुल ग्राफ मुझे मिल जाएगा, मैं इसके अंदर कलर कर दूंगा. गॉट इट. तो ये जो ग्राफ आपने कलर किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट है हमने हमारे लिए, और क्यों इम्पोर्टेंट है और इसमें से क्या मिलने वाला है वो अब हम देखेंगे. The velocity of 40 किलोमीटर पर आवर is represented by height AC, मतलब ये A और C है वो क्या दिखा रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये ग्राफ को कहाँ पे टच कर रहा है, A पर. तो A और C का डिस्टेंस मुझे मिल गया. ओके. एंड BD, the time T2 minus T1 is represented by length AB. तो AB जो है यहाँ पे ये AB मिला हमें, तो वो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे T2 है और यहाँ पे T1 है.
तो मैं T2 माइनस T1 करूंगा तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा मुझे। ए बी लिखो या सी डी लिखो, क्योंकि दोनों सेम है, एक रेक्टेंगुलर के ऑपोजिट साइड्स है। गॉट इट। तो अब हमारे पास दो चीजें आ गई है, ए सी या बी डी। ए सी या बी डी दोनों सेम ही है। ओके, तो ए सी या बी डी वो कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, ये वेलोसिटी है। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कितना हुआ, ये हो गया T2 माइनस T1। अंडरस्टूड। तो ये भी हमारे पास आ गया, मतलब रेक्टेंगुलर के कोई भी रेक्टेंगल होता है उसके दो साइड्स आपको पता चल गए, तो उसके ऑपोजिट साइड भी सेम होते हैं, वो हमें पता है। ओके, तो ये दो साइड्स हमारे पास आ गए। अब हम आगे बढ़ गए हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। Now, so the distance s moved by the car in time t2 minus t1 can be expressed as, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, expressed as s is equal to ac multiply by cd। ओके, मतलब ये जो एरिया था, ये पार्ट का एरिया, ये रेक्टेंगल का एरिया होगा, वो हमें देगा डिस्टेंस। गॉट इट। और ये डिस्टेंस हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एरिया फाइंड करके। ये एरिया कैसे मिलेगा, ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ था सी डी, ब्रेथ था ए सी, तो मैंने लिख लिया एस इज इक्वल टू ए सी इंटू सी डी। ओके, फिर से एक बार समझा देता हूँ ये क्यों किया हमने, क्योंकि ये जो एरिया है उसमें से हमें डिस्टेंस मिलता है। वेलोसिटी हमेशा आपको याद रखना है, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, ये जो ग्राफ, ये लाइन दिख रहा है आपको, वो उसके नीचे का जो एरिया होगा और ये टाइम के बीच का एरिया होगा, वो आपको देगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो फाइंड करने के लिए वैल्यूज चाहिए थे, तो मुझे चाहिए था ये ए सी या बी डी। तो ए सी एंड बी डी सेम ही है, वो मुझे मिल गया। ए बी इज इक्वल टू सी डी, वो भी मुझे मिल गया। तो अब मैं फाइंड करूंगा उसका एरिया, एंड इसका एरिया मुझे देगा डिस्टेंस। ये क्यों दो तीन बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको अब फर्स्ट टाइम ऐसा पढ़ रहे हो, ग्राफ में से कुछ वैल्यू फाइंड करना, तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे। ओके, so now I have S is equal to AC into CD. ओके, अब हमने थोड़ी देर पहले ही प्रीवियस स्लाइड में देखा व्हाट इज AC एंड CD। सो AC इज नथिंग बट 40 किलोमीटर, मैंने आपको यहाँ पे एरो करके दिखाया था। इट इज नथिंग बट AC इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर, जो यहाँ पे मैंने लिखा। एंड CD क्या है, तो CD मतलब T2 माइनस T1, ये है डी। ये डी का वैल्यू कितना होता है, T2। यहाँ पे C का वैल्यू कितना है, T1। तो मुझे C और D के बीच का वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये पूरा है T2 और इतना है T1, तो मैं T2 को T1 में से माइनस करूंगा, तो मुझे ये पार्ट मिलेगा। तो इसीलिए CD इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो 40 किलोमीटर पर आवर इज योर AC and CD is T2 minus T1. This H is hour. Okay. Next step, we'll remove these brackets and units also will change. ये किलोमीटर अपॉन आवर है और यहाँ पे आवर है, तो आवर को ये आवर से कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास मिल गया 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर। गॉट इट। S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। तो यहाँ पे हमारा जो S होगा वो क्या मिला, एरिया, दैट इज 40। ये एरिया डायरेक्टली मैंने आपको बता दिया था, बट यहाँ से हमें कैसे मिला, ये जो वैल्यूज है वहां से 40 मतलब ये साइड, एंड T2 माइनस T1 मतलब ये साइड। तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल का एरिया, ब्रेथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, and therefore we can say S is equal to area of rectangle ABCD, and which is shown as a shaded
part in the figure. Got it? तो अब ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए आपको दिखाया है। अब आपके दिमाग में आपको फिक्स रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, उसके नीचे हमें कोई भी एरिया फाइंड करने के लिए बोले तो वो एरिया जो होगा वो हमको डिस्टेंस देगा या डिस्प्लेसमेंट देगा। We can also study about a uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. We can also study about a uniformly accelerated motion by plotting its velocity time graph. मतलब ये यूनिफॉर्म मोशन था तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन अलग है, यूनिफॉर्म मोशन अलग है। ये दोनों चीज आपको पता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में जो होगा एक्सिलरेशन वो 0 है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, वेलोसिटी सेम, और वेलोसिटी सेम होगा तो एक्सिलरेशन क्या होगा, a इक्वल टू वी माइनस यू। अब आपको लिख के दिखाता हूं तो प्रॉपर आइडिया आएगा। एक्सिलरेशन का फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अभी यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी तो सेम है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल, तो 0 हो गया ऊपर, तो एक्सिलरेशन क्या होगा, एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 0 एक्सिलरेशन। यहाँ पे कौन सी बात हो रही है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, मतलब वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा, इसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। Consider a car being driven along a straight road for testing its engine. हम एक एग्जांपल लेके ये यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन समझते हैं। Suppose a person sitting next to the driver records his velocity after every 5 seconds by noting the reading of a speedometer of the car. तो भी स्पीडोमीटर देखकर दो लोग बैठे हुए, एक ड्राइव कर रहा है एंड दूसरा है वो स्पीडोमीटर देखकर वेलोसिटी को नोट डाउन कर रहे हैं एक बुक के अंदर। ओके, तो कैसे उसके आंसर्स, उसके कैसे वैल्यूज आते हैं वो देखते हैं हम नेक्स्ट टेबल के अंदर। सो द वेलोसिटी ऑफ द कार in kilometer per hour as well as in meter per second at a different instance of a time is shown in table 8.3। तो ये टेबल बनाया है, जो ड्राइवर के बाजू में बैठा हुआ था वो उसने ये हर एक 5-5 सेकेंड्स के बाद एक टेबल बनाया हुआ है। ओके, जो कितने कितने स्पीड कार भागी, 0 में तीनों 0, 5 सेकेंड्स के बाद 2.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी था, एंड जो किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 9 था, 10 में 5.0 और 18, 15 में 7.5, 27। तो ये आप देख सकते हो कि जो वेलोसिटी है वो इक्वल वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो जो मीटर पर सेकंड में है 2.5 वैल्यू से इंक्रीज हो रहा है, देखो यहाँ पे हर एक केस में देख सकते हो आप। एंड जो किलोमीटर पर आवर की बात करें तो 9 से इंक्रीज हो रहा है, देखो 9 किलोमीटर पर आवर क्या डिफरेंस है हर एक दो गैप में। तो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज, वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं बोलेंगे, यहाँ पे तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो डिस्टेंस तो चेंज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी सेम है, वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रहा है वो सेम है, मतलब हमें एक्सिलरेशन मिल रहा है। एक्सिलरेशन कब मिलेगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा। गॉट इट? यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, इक्वल वैल्यू से। तो हम ये टाइप के मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। अंडरस्टूड? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। In this case, the velocity time graph for the motion of the car is shown in figure। ये जो वैल्यूज है उसके लिए मैंने एक ग्राफ बनाया है जो आपको ये ग्राफ में दिखाया हुआ है। ओके, तो 0 पे एक वैल्यूज था, फिर यहाँ पे सेकेंड्स लिए हुए, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर्स में
वैल्यू लिया हुआ है। फिर 5 सेकंड्स में 9 है तो 5 और 9 यहाँ पे ये पॉइंट आपके पास है। फिर 10 and 18 तो ये दूसरा वैल्यू आपके पास है। फिर 15 and 27 ये तीसरा वैल्यू आपके पास है। फिर ये एक वैल्यू छोड़ के आपको दे रहा है 25 का 45 तो 25 यहाँ पे एंड 45 यहाँ पे, ये 45 वैल्यू मिल गया। तो ये सब वैल्यूज यूज कर कर मैंने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है। ओके, एंड वो देख सकते हो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा है, ऐसा स्ट्रेट, जैसा हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखा था ऐसा एक स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा है। स्ट्रेट ग्राफ मिल रहा था तो उसको वो मोशन कैसा था, यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ नहीं है। वो कौन सा ग्राफ था, डिस्टेंस टाइम का, और ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम का। तो वेलोसिटी टाइम में ऐसा ग्राफ होगा तो वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। डिस्टेंस टाइम में आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है तो वो होगा यूनिफॉर्म मोशन का। तो आपको ग्राफ के शेप्स भी पता होने चाहिए एंड ग्राफ कौन से मोशन का ग्राफ है वो भी आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस टाइम में स्ट्रेट ग्राफ होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन का होता है। वेलोसिटी टाइम में स्ट्रेट ग्राफ होगा तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का होता है। दैट थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड। The nature of the graph shows that velocity changes by equal amount in equal interval of time. तो ये डेटा भी दिखा रहा है एंड वो ग्राफ भी दिखा रहा था। वो दोनों चीज क्या दिखा रहे हैं कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखो 9 9 9 इक्वल अमाउंट से चेंज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिफरेंस इज 5 5 seconds. And thus for all uniformly accelerated motion, velocity time graph is a straight line. तो ये आपके दिमाग में फिक्स हो गया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन का होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का होगा तो वो होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अंडरस्टूड? You can also determine the distance moved by the car from its velocity time graph. वेलोसिटी टाइम ग्राफ में से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमने फाइंड किया था। यूनिफॉर्म, ये एक ऐसा ग्राफ देखा ना हमने फर्स्ट ग्राफ, आज ऐसा ग्राफ था, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ था। ओके, अब ये जो ग्राफ है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला ग्राफ है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो ऐसा था, और इसके अंदर जो एरिया हमने ऐसा फाइंड किया, और वो एरिया क्या हमने दिया, एस इज इक्वल टू क्या बोला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, ऐसा था, राइट। तो यहाँ पे भी सेम तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। मान लो कि आपको कोई भी 2 सेकंड्स के या दो टाइमिंग के बीच में ग्राफ फाइंड करना है, तो आप वो एक पर्टिकुलर पार्ट से लाइन को ऊपर खींचोगे, यहाँ से भी ऊपर खींचोगे, एंड ये हमारा जो मेन ग्राफ है, ये मेन ग्राफ है, तो उसको 2 पॉइंट्स पर वो इंटरसेक्ट करेगा। एंड उसके नीचे का मतलब ये सिर्फ इतने पार्ट का, देखो यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इतने पार्ट का जो ग्राफ होगा उसके नीचे वाला ही ग्राफ हम मेजर करने वाला है, सिर्फ इतना। ये मेजर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगा, एंड वो वैल्यू होगा डिस्टेंस का। The area under velocity time graph gives the distance, डिस्टेंस दे रहा है तो डिस्टेंस के अंदर क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मतलब वैल्यू होता है, उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस विथ डायरेक्शन, मतलब वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड एंड उसको डायरेक्शन भी चाहिए डिस्प्लेसमेंट को। मूव्ड बाय कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब ये जो वैल्यू हमें मिलेगा एरिया का वो हमें डिस्टेंस देगा, या हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इफ कार वुड हैव बीन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता कार तो उसका ग्राफ तो ऐसा होता है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। The distance traveled by it
would be represented by the area ABCD under the graph. ओके, तो यहाँ पे मान लो कि ये जो पार्ट है ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रहा होता है, तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इतना ही मेजर करते हैं हम। हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि T1 से यहाँ पे जा रहा है, T2 से इधर जा रहा है, और इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इतना ही हमें ग्राफ का एरिया फाइंड करना था, और वो हमें देता डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस दे देता हमें। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ, दिस इज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ग्राफ। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा, जो अब आपको बताऊंगा मैं। So see this graph properly. It is a very important to understand this difference. Since the magnitude of the velocity of the car is changing due to acceleration, the distance as traveled by the car will be given by the area ABCDE। मतलब ये जो ग्राफ है वो किसका है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन का। यूनिफॉर्म मतलब वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंजिंग, एंड इसीलिए ग्राफ ऐसे धीरे 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 ऊपर जा रहा है। द डिस्टेंस एज ट्रेवल्ड बाय द कार इज गिवन बाय द एरिया अंडर ए बी सी डी एंड ई। मतलब इसके अंदर का जो एरिया है इतना, ठीक है, वो ब्लू कलर का जो दिखा रहा है वो पूरा एरिया आपको डिस्टेंस देगा। ये पूरा एरिया एक्चुअली आप देखने जाओगे तो एरिया ऐसा बन रहा है, तो ये एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, कंफ्यूजन हो जाता है एरिया फाइंड करने में ऐसा। तो आपको बहुत सिंपल सा ट्रिक यूज करना है, ये एरिया को आप ऐसे ब्रेक कर दो, तो ऊपर वाला जो एरिया है वो क्या होगा, ट्राइंगल, नीचे वाला जो एरिया है वो कैसा हो गया, रेक्टेंगल या स्क्वायर। ये दोनों को ऐड कर दो, ये ट्राइंगल प्लस ये रेक्टेंगल, तो पूरा एरिया आपको मिल जाएगा, एंड वो पूरा एरिया क्या देगा आपको, डिस्टेंस एस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। सो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम दोनों को ये हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी मतलब ये ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई ये ट्राइंगल का एरिया, वो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास पूरा एरिया मिल जाएगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट स्टेप, अब ये जो रेक्टेंगल था ए बी सी डी, उसका एरिया क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए बी या सी डी, वो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय बी सी इंटू ए डी, अब बी सी लिखो या ए डी लिखो, दोनों करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी, ओके, ये दिस ए बी मल्टीप्लाई बाय बी सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। आप ए डी मल्टीप्लाई बाय डी सी भी लिख सकते हो, वैल्यू तो सेम ही आने वाला है लास्ट में। तो दिस इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जो आपने राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री बना रहा है, सो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हाफ इन हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस, ये बेस होता है, ये बेस है, एडी ट्राइंगल का बेस है जिसके ऊपर ये पूरा ट्राइंगल खड़ा है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई बेस इनटू हाइट विथ हाफ यू विल गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल का एरिया का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना चाहिए, इट इज नथिंग बट, ऐसे कभी भी आपको मिले हाफ बेस इनटू हाइट, यहाँ पे आपको एडी दिया है बेस तो एडी लिख सकते हो, कोई और वैल्यू दिया हो तो यहाँ पे आप बीसी दिया है तो बीसी लिख सकते हो, एडी दिया है तो एडी लिखा है, जीएच दिया है तो जीएच आएगा, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट मतलब ये होता है उसका हाइट, ये वाला, तो यहाँ पे हाइट क्या है, डी ई। ओके, तो ये आपके पास बहुत सिंपल फॉर्मूला आ गया है ये एरिया के लिए, फॉर दिस एरिया, गॉट इट।
तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आगे एक्सरसाइज के अंदर इंटेक्स क्वेश्चंस के अंदर सॉल्व करने के लिए आएंगे. गॉट इट? Now, in the case of a non-uniformly accelerated motion, अभी हमने देख लिया यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला ग्राफ देखा, वो कैसा था? यहाँ पे आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवा रहा हूँ. यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसे हॉरिजॉन्टल है. ओके, फिर आपने यहाँ पे फिर से देखा, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है. यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड ऐसे स्टार्ट गया स्ट्रेट. तो अभी आपको ग्राफ के शेप देखकर कौन सा मोशन है वो आपको पता चलेगा, राइट? तो ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ, ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैन हैव एनी शेप. नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन का क्या कोई भी शेप हो सकता है, रैंडम शेप होगा. फिगर 8.7 ए, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है, दिस इज 8.7 ए एंड दिस इज 8.7 बी. तो 8.7 ए उसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, दैट रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose velocity is decreasing with time. इसका जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. देखो स्टार्ट कितने से हो रहा था 20, धीरे धीरे कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम, एक पॉइंट पे आके उसका वेलोसिटी 0 हो गया. मतलब ये जो व्हीकल है वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है या तो फिर उसका जो एक्सिलरेटेड है, एक्सिलरेशन है वो कम कर रहा है. सिंपल. And the next one is a figure 8.7b shows the velocity time graph representing a non-uniform variation. ये क्या था? यूनिफॉर्म डिक्रीज, मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट हुज वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम. जो डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी तो ऐसे धीरे धीरे नीचे आएगा, इंक्रीज हो रहा है तो धीरे धीरे ऐसे ऊपर आ रहा है. समझ में आ गया? अब ये जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ, वो क्या होगा, उसका शेप कैसा होगा? देखो यहाँ पे, कैन हैव एनी शेप. तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन. shows the time velocity time graph representing non-uniform motion of velocity of the object. ये नॉन यूनिफॉर्म मतलब पहले गए अप डाउन, तो ये रैंडम मोशन है एक ही ग्राफ के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन. गॉट इट? जो यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन होता है तो एक ही शेप होता है ऐसे स्ट्रेट, उसमें अप एंड डाउन नहीं आता. बट यहाँ पे तो अप भी जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप डाउन आ रहा है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन, जो आपको याद रखना होगा. नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम एंड ट्राई टू इंटरप्रेट दिस ग्राफ्स. तो ऑलरेडी आपको बहुत सारे ग्राफ्स के पैटर्न्स पता चल गए हैं, बहुत सारे अलग अलग शेप्स पता है आपको ग्राफ्स के. ओके, तो ये सब शेप्स आपको याद रखने हैं. एग्जाम के अंदर एमसीक्यू के अंदर भी पूछते हैं ये ग्राफ. आपको एक पर्टिकुलर ग्राफ दे दिया, मान लो कि यही ग्राफ दे दिया है, ये आपका क्वेश्चन है, सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है, और नीचे ऑप्शन में होगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सिलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग मोशन या यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. तो हम ऐसा लिख सकते हैं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, वो फोर्थ ऑप्शन. तो आपको पता चल गया कि ये तो यूनिफॉर्म मोशन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में तो इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे तो टाइम भी इक्वल नहीं है, डिस्टेंस भी इक्वल नहीं है. फिर दूसरा होगा यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है, ये भी नहीं होगा.
यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, तो उसमें ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो ये वो भी नहीं होगा। तो लास्ट जो ऑप्शन होगा वही आपका आंसर है, एंड जो यहाँ ये ग्राफ आपको दिखाएगा, ये ग्राफ आपको दिखा रहे हैं और ऑप्शंस आपको दे रहे हैं कि बहुत सारे ऑप्शन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो ऑब्वियसली ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे ग्राफ दिखाकर भी आपको ऑप्शंस पता होने चाहिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।